اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بنی اسرائیل ان اقوام کی طرح ضائع نہ ہو جائیں جو اللہ کی ہدایت اور کتاب کے بغیر ضائع ہو گئی تھی۔ اللہ نے چاہا کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح لڑکھڑاتے نہ پھریں، جس طرح کہ پہلی قومیں اندھی اونٹنی کی طرح ٹامک ٹوئے مارتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نہائے دھوئے اور 30 دن روزے رکھے۔ پھر وہ طور سینا کی طرف آئے تاکہ اس کا رب اس سے باتیں کرے اور وہ کتاب حاصل کرے جو ان کی امام ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد منتخب کیے جو اس صورتحال کی گواہی دینے والے ہوں، اس لیے کہ بنی اسرائیل بڑی اڑیل، ضدی اور انکاری قوم تھی، اور اس نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری نیابت کرنا اور فسادیوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ جماعت کے لیے کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی میقات کی طرف چلے، لیکن شوق نے اسے اپنے رب کی طرف کیا۔ اس نے جلدی کی اور کوہ طور میں پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے رب، میں آپ کے پاس جلدی اس لیے چلا آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ اپنے رب کے میقات کو 40 دن پورے کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا میں پہنچے۔ اس کے رب نے اس سے باتیں کی اور سرگوشیاں کی، اسے اپنے قریب کیا، اس سے اس کے شوق میں اضافہ ہوا، تو کہا، میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طاقت نہیں رکھتے، یہ اس لیے کہ اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ پہاڑ بھی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے کلام کو اٹھا سکیں، جائے کہ وہ اس کے نور کو برداشت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم اسے اللہ کے ڈر کی وجہ سے جھکنے والا اور ریزہ ریزہ ہونے والا دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آئی تو کہا، تو پاک ہے، میری توبہ، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی پیغام رسانی اور کلام کے لیے تمام لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، جو میں تجھے دوں وہ لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں لے لیں اور ان میں ہر وہ چیز تھی جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی۔ اس میں پند و نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ ان تختیوں کو پورے زور سے تھام لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ انہیں اچھے انداز میں تھام لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کے پاس گئے اور انہیں بتایا جو اللہ نے ان پر انعام کیا، انہوں نے بےہودگی اور جسارت کا انداز اپنایا۔ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو بظاہر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس بےہودگی اور جسارت پر ناراض ہوئے۔ انہیں ایک دھماکے نے آ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس دھماکے کو برداشت نہیں کر سکتے جسے اللہ نے پیدا کیا، اور وہ اللہ کے نور کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو اب مجھے ہلاک کرے گا اس کے بدلے جو ہم میں سے احمقوں نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ان کے مر جانے کے بعد انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ بنی اسرائیل صدیوں سے مصر میں مشرکین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مصر میں قبطی قبیلے کے لوگ بہت سی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ان سے شرک کی کراہت زائل ہو گئی، ان میں اس کی محبت سرایت کر گئی، جس طرح کمزور اور پرانے گھر میں پانی سرایت کر جاتا ہے۔ جب بھی وہ فرصت پاتے تو شرک کی طرف اس طرح لڑکھڑاتے جس طرح پانی ڈھلوان کی طرف گرتا ہے۔ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ان کا ذوق خراب ہو گیا۔ اگر وہ اچھائی کا راستہ دیکھ لیتے تو وہ اسے اپنا راستہ نہ بناتے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے تو وہ اسے اپنا راستہ بنا لیتے۔ وہ سمندر سے گزرے تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ،
हमारे लिए भी एक माबूद बनाओ जैसा इनका माबूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए और कहा, तुम जाहिल कौम हो। हैरानगी की बात है, बड़े जुल्म की बात है। अल्लाह ने तुम पर इनाम किया और फजलो करम किया। तुम्हें वो कुछ दिया जो जहानों में से किसी को भी नहीं दिया गया। क्या अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई माबूद तलाश करूं, हालांकि इसने जहानों पर तुम्हें फजीलत अता की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और चंद दिन इनसे गैर हाजिर रहे तो वो शैतान का शिकार और मुशरिक बन गए। इनमें से एक शख्स उठा जिसे सामरी कहा जाता है। इसने कौम के लिए एक बछड़ा ईजाद किया, एक ऐसा जिस्म जिसकी आवाज भी है। जिसने कहा, ये तुम्हारा और मूसा का माबूद है। वो तो भूले रहे। बनी इसराइल इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए और इसके आगे बहरे और अंधे होकर गिर पड़े। क्या वो नहीं देखते कि वो इनकी तरफ बात को लौटा नहीं सकता और वो इनके लिए नुकसान का मालिक है और ना ही नफा का? क्या वो नहीं देखते कि वो बछड़ा ना इनसे बात कर सकता है और ना ही रास्ते की रहनुमाई कर सकता है? हारून ने इन्हें रोका और बड़ी मेहनत की और कहा, ए मेरी कौम, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए। तुम्हारा रब रहमान है। तुम मेरी पैरवी करो और मेरा हुक्म मानो। लेकिन बनी इसराइल सामरी के जादू के दीवाने हो चुके थे। इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत घर कर चुकी थी। इन्होंने कहा, हम इसके आगे झुकते रहेंगे जब तक मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास वापस नहीं आ जाते। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दी कि बनी इसराइल को सामरी ने गुमराह कर दिया है, तो वो अपनी कौम की तरफ नाराजगी की हालत में कफ अफसोस मिलते हुए लौटे। अपनी कौम से नाराज हुए और अल्लाह की खातिर अपने भाई हारून से नाराज हुए। ए हारून, जब तूने इन्हें देखा कि वो गुमराह हो चुके हैं, किस चीज ने तुझे रोका? तुम मेरे पास क्यों चले ना आए? क्या तूने मेरी नाफरमानी की? हारून ने माजरत पेश की और कहा, मैं इस बात से डर गया कि आप मुझे कहेंगे तूने बनी इसराइल के दरमियान तफरीक डाल दी और मेरी बात का ख्याल न रखा। कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि वो लोग मुझे कत्ल कर देते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले। तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, अरे सामरी, तूने ये क्या नाटक रचा रखा है? सामरी ने अपने जुर्म का एतराफ किया और कहा, यूं ही मेरे दिल ने ये अफसाना गढ़ लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दफा हो जाओ, जिंदगी भर तेरी सजा ये है कि तू कहता फिरेगा, देखना मुझे कोई हाथ ना लगाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे तन्हाई की सजा दी। वो अकेला चलता है और वहशी जानवर की तरह अकेला जिंदगी बसर करता है। ना वो खुद किसी से मानूस होता है और ना कोई इससे मानूस होता है। इससे बढ़कर और क्या सजा हो सकती है? जिस शख्स ने हजारों लोगों को शिर्क की नजासत से आलूद किया, जरूर लोग इसे गंदा समझें और इसे दूर भगाएं। जिस शख्स ने अल्लाह और इसके बंदों के दरमियान तफरीक डाली, जरूरी है कि इसके और लोगों के दरमियान जुदाई पैदा कर दी जाए। जिसने अल्लाह की सरजमीन में शिर्क की तरफ दावत दी, वो एक गुनाहगार है। जरूरी है कि सारी जमीन इसके लिए कैद खाना बन जाए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मलऊन बछड़े की तरफ मतवज्जा हुए। इसे जलाने का हुक्म दिया तो इसे जला दिया गया। फिर आपने इसे समंदर में फेंक दिया। बनी इसराइल ने पूजा किए जाने वाले बछड़े का अंजाम देखा, इसकी कमजोरी और आजिज़ी देखी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। तुम अपने खालिक के हुजूर तौबा करो, अपने आप को कत्ल कर डालो। ये तुम्हारे खालिक के यहाँ तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्होंने इसी तरह किया। जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की, इन्होंने इन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने इसकी पूजा की थी। इस तरह अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अनकरीब जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया, इन्हें इनके रब की नाराजगी आ लेगी और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर होगी। इसी तरह हम इफ्तरा पर्दाजों को सजा दिया करते हैं। क़यामत तक बछड़े के पुजारियों से ऐसा ही सलूक होगा और क़यामत तक मुशरिकीन के साथ यही सलूक रवा रखा जाएगा। बनी इसराइल ने मिस्र में गुलामी, जिल्लत और रुसवाई की बुनियाद पर परवरिश पाई। इसी बुनियाद पर इनके बच्चे जवान हुए और जवान बूढ़े हुए। इनकी रगों में खून ठंडा हो गया।
इनकी सूरत हाल ये हो गई कि अब वो सरदारी और क़ियादत का ख्वाब भी नहीं देखते और ना ही जंग और जहाद के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बनी इसराइल अपनी जिंदगी के दिन अजनबियत में गुजार रहे थे। ना इनका कोई वतन है और ना ही हुकूमत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो अल्लाह ताला की वही के जरिए मुक़द्दस सरजमीन में गुजारें और वहाँ बादशाहों और आज़ादों की तरह आबाद हों। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कमज़ोरी और बुज़दिली को पहचानते थे। आपने इरादा किया कि इन्हें शौक दिलाएं और इनके लिए मामले को आसान करें, इसलिए कि मुक़द्दस सरजमीन पर एक ताकतवर और जंगजू कौम का गलबा था। बनी इसराइल मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते थे तावक्त ये कि वो जाबिर और जालिम लोग वहां से निकल न जाएं। अल्लाह ने इनको अपनी नेमतें जितलाई और जहानों पर इनको फजीलत दी, इसका तज़किरा किया ताकि वो अल्लाह की राह में जहाद के लिए चौकस हो जाएं और वो इस रुस्वा कुन गैर मुनासिब जिंदगी को नापसंद करने लगे। इरशाद बड़ी ताला है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम पर हुई, जब इसने तुम में अंबिया बनाए, बादशाह बनाए और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहानों में और किसी को न दिया। फिर इनसे कहा, तुम्हारे सामने मुकद्दस सरजमीन है, तुम पर लाजिम है कि तुम अपने पाँव पर खड़े हो और दुश्मनों से इसे छीन लो। अल्लाह ताला किसी के लिए जब कोई चीज़ लिख देता है और वो इसके लिए मुकद्दर कर देता है तो इसे हासिल करना आसान हो जाता है। अल्लाह के फैसले को कोई मुस्तरद करने वाला नहीं। कुरान हकीम में मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि कहीं इन पर बुज़दिली की आदत गलबा ना पा ले। आपने फरमाया, पीठ फेर कर ना भागना, वरना तुम नुकसान उठाने वाले बनकर पलटोगे। वही हुआ जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरते थे। इन लोगों का जवाब हूबहू वही था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। जैसा कि कुरान हकीम में मज़कूर है, ए मूसा, इसमें जाबिर कौम आबाद है, हम इसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे तावक्त ये कि वो इससे निकल ना जाएं। इन्होंने बड़े नखरे और सुकून से कहा, अगर वो निकल जाएं तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। इन लोगों में से जो डरते थे, दो आदमियों ने कहा, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था, दरवाजे में से इनके पास अंदर आओ, जब तुम दाखिल होगे तो तुम ही गालिब होगे। अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन इन पे ये बात असरअंदाज ना हुई और इन्होंने कहा, अगर अंदर जाना ही जरूरी है तो तुम मोजज़ाना तौर पर दाखिल हो जाओ। जब हम ये सुन लेंगे कि तुम दाखिल हो चुके हो, हम आएंगे, दाखिल होंगे, फिर हम भी तो अमन पसंद और दुरुस्त हाल मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। कुरान हकीम में मज़कूर है, इन्होंने कहा, ए मूसा, जब तक वो इस बस्ती में मौजूद हैं, हम हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं होंगे। तू और तेरा रब जाओ, दोनों लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए और इन लोगों से मायूस हो गए। फरमाया, मेरे रब, मैं अपना और अपने भाई का जिम्मेदार हूँ, हमारे और फासिक कौम के दरमियान अलैदगी कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन पर ये सरजमीन 40 साल तक के लिए हराम कर दी गई है, वो जमीन में परेशान फिरते रहेंगे, फासिक कौम से मायूस ना हो। इस मुद्दत में ये नस्ल मर जाएगी जिसने गुलामी और जिल्लत की हालत में परवरिश पाई। एक दूसरी नस्ल पैदा होगी जो इस मैदान में सख्त और तंग हालात में पले बढ़ेगी। ये मुस्तकबिल की उम्मत होगी। यही हर दौर में यहूदियों का अंजाम होता है। यहूदी एक बेचैन उम्मत है जो गुलामी और जिल्लत की जिंदगी बसर करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, आपने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से खिताब करने के लिए खड़े हुए। आपसे पूछा गया कि दुनिया में सबसे बढ़कर आलिम कौन है? फरमाया, मैं। अल्लाह ताला ने इस पर डांट पिलाई, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब ना किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमाउल बहरीन के मुकाम पर मौजूद है, वो तुझसे बढ़कर आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए परवरदिगार, इसके पास कैसे पहुंचूं? इनसे कहा गया कि टोकरी में एक मछली ले लो, जहां वो गायब हो जाएगी वही वो होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जवान यूशा बिन नून को साथ लेकर मुसलसल चलते रहे। टोकरी में दोनों ने एक मछली डालकर उठा ली। जबकि दोनों एक चट्टान के पास थे, दोनों ने अपने सर इस चट्टान पर टकाए और सो गए।
मछली टोकरी से खिसकी और इसने समंदर में अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम और नौजवान यूशा बिन नून अंगशत बदनदार रह गए। बकिया दिन रात चलते रहे। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, हमारा खाना लाओ, इस सफर में हम बहुत थक गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक इस जगह से आगे गुजर नहीं गए जहां का इन्हें हुक्म दिया गया था, इन्होंने कोई थकावट महसूस नहीं की थी। मूसा अलैहिस्सलाम से आपके नौजवान ने कहा, क्या आपने देखा जब हम चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली को भूल गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो हमारे जाए मकसूद थी। वो अपने निशानात कदम पर वापिस हुए। जब दोनों चट्टान तक पहुंचे तो अचानक चादर ओढ़े हुए शख्स मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम किया। खिज़र ने कहा, इस सरजमीन पर ये सलाम कैसा? फरमाया, मैं मूसा हूँ। इसने कहा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया, हाँ। क्या मैं इस बुनियाद पर आपकी पैरवी अख्तियार कर सकता हूँ कि जो रश्द हदायत का इल्म आपको अता किया गया है आप मुझे भी सिखला दें? इसने कहा, आप मेरे साथ सब्र व तहम्मुल के साथ हरगिज नहीं रह सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते, और तुझे अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसे मैं नहीं जानता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा। समंदर के किनारे दोनों चलने लगे। इनके पास कश्ती न थी। इनके पास से एक कश्ती गुजरी। इन्होंने कश्ती वालों से बात की, वो इन्हें अपने साथ सवार कर लें। खिज़र अलैहिस्सलाम जाने पहचाने थे। इन दोनों को बगैर किराए के सवार कर लिया। एक चिड़िया आई, कश्ती के किनारे पर बैठी, समंदर से एक दो चूंच पानी लिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म में इतनी कमी भी नहीं की कि जितनी इस चिड़िया की चूंच ने समंदर के पानी में कमी की है। खिज़र कश्ती के तख्ते की तरफ लपके तो इसे तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने बगैर किराए के हमें सवार किया, आपने इनकी कश्ती तोड़ दी ताकि तू कश्ती वालों को हलाक कर दे। खिज़र ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकता? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मैं भूल गया इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए, मुझे किसी मुश्किल में ना डालिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की पहली भूल थी। दोनों चलते चले गए। बहुत से लड़कों में एक लड़का खेल रहा था। खिज़र ने इसे सर के बल्लाई जानिब से पकड़ा, अपने हाथ से इसका सर उखेड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बगैर किसी जुर्म की एक पकीज़ा जान को कत्ल कर दिया। इसने कहा, क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकता? दोनों फिर चल पड़े, यहाँ तक कि एक बस्ती के बाशिंदों के पास आए। बस्ती वालों से खाना तलब किया। इन्होंने इन दोनों की मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरना ही चाहती थी। खिज़र ने अपने हाथ का सहारा देकर इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। इसने कहा, अब मेरे और तेरे रास्ते जुदा हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि काश वो सब्र करते, यहाँ तक कि खिज़र हमें दोनों के बारे में सही सूरत हाल से आगाह करते। खिज़र ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी। कहा, रही कश्ती तो वो मसाकीन की थी जो समंदर में काम करते थे। मैंने इरादा किया कि इसमें ऐब पैदा कर दूं। इनके पीछे एक बादशाह हर अच्छी कश्ती को छीन रहा था। रहा लड़का, इसके वालिदैन मोमिन थे। मुझे अंदेशा हुआ कि वो इन्हें सरकशी और फिक्र में मुब्तला कर देगा। हमने इरादा किया कि इसके वालिदैन का रब इन्हें इससे बढ़कर पकीज़ा, बेहतर और हमदर्दी और रहमदिली के करीब तर नेमुल बदल अता कर दे। रही दीवार तो वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी। इन दोनों का बाप बड़ा नेक आदमी था। तेरे रब ने चाहा कि दोनों बालिग जवां हो जाएं और अपना खजाना खुद निकालें। ए मूसा, ये सब कुछ तेरे रब की रहमत की बिना पर हुआ। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। ये ताबीर है इन तमाम अमूर की जिन्हें देखकर तुम सब्र ना कर सके। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पहचान गए कि कोई भी अल्लाह के इल्म को अपने घेरे में नहीं ले सकता। इसका दिया हुआ कुछ इल्म किसी के पास है और कुछ किसी दूसरे के पास। हर साहिब इल्म से दूसरा आलिम फोकियत ले जाने वाला मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और बनी इसराइल अपने अमाल की सजा पाते हुए अल्लाह की अज़ाब में गिरफ्तार जिंदगी में पुरगंदा हाल फिरते रहे।
اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسنت مسلط کر دی اور غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا جس نے ان میں انبیاء اور بادشاہ بنائے، اور انہیں وہ کچھ دیا جو ان کے زمانے میں جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دیا تھا، جس نے انہیں آل فرعون سے نجات دی جو انہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، جس نے سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا تو انہیں نجات دی، اور آل فرعون کو اس حال میں غرق کر دیا کہ وہ دیکھ رہے تھے، جس نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ وہ اللہ جس نے ان کے لیے زمین میں چشمے نکالے اور ان کے کھانے پینے کے مقامات میں فراوانی اور وسعت پیدا کی۔ اس سب کچھ کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نافرمانی کی اور زیادتی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کر دیا جو تمام مخلوق میں ان پر زیادہ شفقت کرنے والے تھے، ان کے والدین سے بھی زیادہ ان پر محبت، پیار اور شفقت کرنے والے تھے، اور وہ ان پر اس طرح کے شفیق تھے جس طرح ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر شفیق ہوتی ہے، یا ایک رحم دل ماں اپنے یتیم بیٹے پر شفیق ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے کہ جسے ان لوگوں نے گالی دی تو اس نے ان کے لیے دعا کی، جب یہ لوگ اس پر ہنسے تو انہوں نے ان کے لیے آنسو بہائے، جب انہوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تو انہوں نے ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہ وہ عظیم الشان نبی تھے جس نے انہیں فرعون کی قید سے چھڑایا، مصر کی جیل سے نکال کر آزادی دی اور عزت کے میدان میں لے آئے، بدبخت غلاموں کی زندگی سے نکال کر معزز آزاد لوگوں کے ماحول میں لے آئے۔ انہوں نے اسے ناراض کر دیا، اسے تکلیف دی، اس سے دشمنی کی، اسے مذاق کیا اور اسے اپنے میں سے سب سے کمتر شخص قرار دیا، اور حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک باروب انسان تھی۔ کیا وہ سزا، رسوائی، ذلت، مسکنت، مسلسل پریشانی کے مستحق نہیں تھے؟ اب وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے؟ کیوں نہیں، وہ سب کچھ کے مستحق تھے، بلکہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے بڑھ کر سبھی وہ سزا کے مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک حصہ جو ہے چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور اب یہ دوسرا ہاف تھا۔ اس طرح کے مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔